Hi and a very welcome back. Um, Today we are going to understand about a topic in your unit of plant geography and forestry. The topic is on lac culture. So we are going to understand that what is lac, what are the sources of lac, and how is lac processed, how is lac actually obtained. So we are going to look into the whole process of lac culture, right? So we start with first of all the basic understanding, right? So lac is a natural resinous substance, right? So this is a resinous substance which is natural in origin because it is obtained from an insect, and therefore this is the only resin from animal origin, right? तो लैक एक रेजिनस सब्सटेंस है और एंड ये जो है ये रेजिन एक इंसेक्ट में से मिलता है और इसलिए ये एनिमल ओरिजिन का रेजिन है. सो बिकॉज दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, so obviously this product would be natural, it is biodegradable, it is non-toxic, it is odorless, tasteless, and the resin that is obtained is hard and non-injurious to health. So resin की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा होती है कि at sometimes it is present in melted form and then later on it will become hard, right? So resin are something that is actually present in liquid form but later on it can become hard, right? So but because synthetic resins are actually toxic, right, and they can cause harm to the environment, this resin that is obtained from an insect which is of animal origin is therefore a good alternative to synthetic resin. Therefore, as this is biodegradable, right, so it can have a number of applications for various purposes. Then this resin is actually used as a protective and decorative coating in the form of thin films, can also be used as adhesives and plastic, right? जब भी कोई कोटिंग करनी होती है मे बी फर्नीचर के ऊपर या तो फिर किसी भी और चीज़ के ऊपर एक स्मूथ कोटिंग करनी होती है तो इस रेजिन का यूज़ होता है. इवन इट इज़ यूज्ड एज एडेसिव, राइट, like a gum also this is used, and can also be used as a plastic material, but since this is a biodegradable product it will not cause harm to the environment. Now lac is actually a word that is derived from a Sanskrit word which is called laksha, right? So laksha actually means lakhs, मतलब बहुत सारे, right? We use thousands or lakhs, we use words like 10 lakh, 20 lakh, right? So laksha is nothing but many things present in many number, that is referring to lakh, right? So this word actually refers to 100,000 and is suggestive of the large number of insects involved in its production. So लाख एक ऐसा रेजिन है जो इंसेक्ट्स की मदद से बनता है, एंड इंसेक्ट्स जो है कोई एक इंसेक्ट उसको नहीं बना सकता. सो फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैक बहुत सारे इंसेक्ट्स एक साथ मिलके इस लाख को बनाते हैं और इसलिए इसको बोलते हैं लाक्षा, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स, लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स are involved in this procedure and therefore this is called as laksha. Laksha literally means lakh, that is many number of insects that are involved together in its production. Now this lakh plays an important role in the economy of the country,
because lac is a biodegradable resin and it is in a great demand in the country. So, and also this is important for the tribal people, where in India 3 to 4 millions of tribal people, they earn their subsidiary income from its cultivation. So हो सकता है कि ट्राइबल पीपल जो है उनका प्राइमरी इनकम ये नहीं है, बट सब्सिडरी इनकम, अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, पार्ट टाइम इनकम of tribal people comes from the cultivation of lac insects, where from which they obtain the lac resin and they sell in the market. So this therefore helps in the economy of the country, where raising of lac insects can give a product which is biodegradable, right? And that is the lac resin. So we need to know that India is the major producer of lac. India पूरे वर्ल्ड में लाख प्रोड्यूस करने वाला मेजर कंट्री है, राइट? एंड इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन. पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से 50% प्रोडक्शन तो इंडिया में ही होता है. Therefore India is like a major lac producing country in the world, and most of the lac produced in India is from homestead land and wasteland, right? अब क्या बोल रहे हैं, lac जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, सबसे अच्छी बात ये है कि जिस लैंड पे लाख को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट लैंड इज वेस्ट लैंड एंड होमस्टेड लैंड, राइट? वेस्ट लैंड मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पे लाख प्रोडक्शन किया जाता है. सो इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग दैट वेस्ट लैंड इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ something that is becoming good for the economy of the country, and also it is eventually good for the environment, because these insects, they require trees to survive, and to get lac, these insects needs tree, and so to get lac we have to grow more trees, and these trees can actually be grown in wasteland areas. And so this is a good thing actually, right? Now we also need to know the major producers of lac. These are the countries India, Thailand, Myanmar, Malaya and Yunnan province of China. So you can see that India is in the top list of major lac producing countries, and the next competitor of India is Thailand, right? So there is Thai lac also, which is exported all over the world, but India is also a major producer of lac. Now let us understand a little bit of history that we need to know. So the description of the insect and its host plant, that is its food plant, the palas, which is called Lakshataru, is recorded in the Atharva Veda. So the history says there is a Veda which is called Atharva Ved. So Atharva Ved is a Ved which has all the information about how in Vedic times daily rituals were carried out, how daily things were done in Vedic times. That all is mentioned in अथर्व वेदा. अथर्व वेदा में वैदिक टाइम्स में जो भी चीज़ें होती थी वो सब मेंशन किया गया है. तो इन अथर्व वेदा there is an so it is a book actually, and this book has description of this insect, right, and about its host plant. मतलब कि ये इंसेक्ट को जिस प्लांट पे ग्रो करना होता है,
जिस पे वो ग्रो करता है, जिस प्लांट में से वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, होस्ट प्लांट जो उसका फूड प्लांट होता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन अथर्ववेद में दिया गया है। और वो प्लांट है पलास, जिसको अगर आप साइंटिफिक नेम से जानते हो तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं। सो पलाश इज tree that is having orange colored flowers which gives yellow color in water. So this palas flower is also used in Holi for making colored water. So there is description of this insect and host plant in Atharva Veda with the name of Lakshataru. Lakshataru means, Laksha means lakh and Taru means tree. So a tree of lakh. So this is a tree on which lakh insects grow, and therefore this is called Lakshataru in Atharva Veda. Then in Mahabharata, lakh house is mentioned as lakh griha. Laksha griha has been mentioned in Mahabharata. अगर आप लोग ने किसी ने भी महाभारत देखी हो तो उसमें एक स्टोरी आती है where Kauravas they play a conspiracy, right? वो एक conspiracy करते हैं पांडवास के अगेंस्ट में, जहाँ पे वो लाक्षागृह बनाते हैं. So Kauravas they make लाक्षागृह for Pandavas. So Lakshagriha is a house of lac, right? So lac is a resin and it is a flammable resin, right? So Lakshagriha इसलिए बनाते हैं क्योंकि Kauravas they wanted that Pandavas should die, and the Pandavas were staying there in the Lakshagriha. They were being told to stay at that place with a conspiracy of killing them, right? So there is a description of Lakshagriha in Mahabharata where Pandavas stayed, but they actually escaped the fire, and in that way they were actually saved. But Lakshagriha was made to kill the Pandavas by the Kauravas, right? We all know the envy between Kauravas and Pandavas, and that is the reason why Lakshagriha was made. So Lakshagriha basically Pandavas को मारने के लिए बनाया गया था, क्योंकि लाक्षा यानी कि लाख जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, तो उसकी वजह से एक पूरा पैलेस बनाया था जो लाख का बना हुआ था, जिसमें पांडवास रुके थे. And in that way an attempt was made to kill the Pandavas. Now like this there is history present, but since lac is an important resinous substance which is of natural origin, so there was a need to culture lac on a large scale, right? And hence attempts were made to increase the production of lac by scientific methods. तो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके लाख का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, वो सब कोशिशें उस वक्त में की गई थी. तो इन 1709 फादर टैकर्ट डिस्कवर्ड द इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस लाख. सो द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द इंसेक्ट that was producing lac goes to Father Tackert, and then Kerr in 1782 gave the name Coccus lacca. So Kerr जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1782 में उस इंसेक्ट को साइंटिफिक नेम दिया which is Coccus lacca. And later Green and Chatterjee by the time like 1922 and 1915 they both agreed for the term Tacaria lacca for the insect. But later on the name that was given to the insect was Laccifer lacca. So today the name that follows is Laccifer lacca or Caria lacca,
right? So this is the scientific name of the insect. Now, as the lac production has had to be increased, so an association, an institute was formed, which was named as Indian Lac Association, ILA, which was formed at that time. And later on this was renamed as the Indian Lac Research Institute, ILRI, and this was actually merged in the Indian Council of Agricultural Research, ICAR. So जो सारी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चरल रिसर्च में होती थी, सो उसी में लाख रिसर्च को भी इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि लाख अल्टीमेटली इज़ product of forest, so it is a product of obtained though by insects but obtained by utilizing plants. So this was merged into Indian Council of Agricultural Research in 1966, and now this whole lac research is been monitored by Indian Institute of Natural Resins and Gums. So this is the body that deals with all the lac production, right? So I hope that this part is clear with you. Now let us know something more about the insect which produces lac. So the scientific name of the insect already हमने देख लिया, it is Laccifer laca. So this is its classification. Since it is an insect, is falls under class Insecta, order Hemiptera, superfamily Cocoidae, family Laciferidae, genus Laccifer and species Laca. Now the same thing has been mentioned here, that members of two families of Hemiptera. So order Hemiptera की दो families है, Laciferidae and Tacardinidae. तो जितने भी lac insects हैं वो सारे इन दो families में आते हैं, Laciferidae and Tacardinidae, but the family of Laciferidae Feridae has most common lac insects, and lac insects belongs to genus Laccifer. genus Laccifer में आते हैं, of superfamily Cocoidae, of order Hemiptera. So the same thing has been mentioned here. Now though lac insect, they actually give a very useful product, but these are actually pest on many wild and cultivated plants or trees. तो lac insect जो है वो actually एक pest है wild और cultivated plants पे. So they actually live as parasites. lac insects क्या करते हैं, वो parasite की तरह रहते हैं. They feed on the sap of the tree. So since they are parasite, they obtain their nutrition from the tree. तो ट्री में जो sap flow करता है, right, जो भी nutrients होते हैं ट्री में, so these insects they actually feed on that sap, and in the meanwhile they secrete the resin which is called lac, right? So actually this is a pest, but the point is that though these are pests, they enjoy the position of being a very useful pest, because this pest gives a very good resin which is of a very good quality, which is biodegradable and has a very good demand in the market. It has a good price in the market, and that is why though these are pests, these are not to be removed, because these insects give a good product which is good for the economy of the country, right? So now one thing that you need to know is, why do they secrete lac? So lac is actually a resin which the female insect of the lac family, they secrete it for the protection of the new young ones and the protection of themselves also. So while the female insect
as they lay egg, they start secreting the resin over their body. उनकी अपनी खुद की बॉडी पूरी रेजिन से कवर हो जाती है क्योंकि they are protecting the eggs from like any other attack, right? And therefore they secrete the resin so that their young eggs could be protected, so that new progenies can be brought, right? So therefore they produce or secrete the resin, which is lac, right? So yeah, so for 1 kg of lac resin, 300,000 insects lose their lives, right? So as I said that like lakhs of thousands of insects are involved in its production, and therefore this is called laksha. So as you can see, the information that is given is के 1 kg of lac को बनाने के लिए 300,000 insects की लाइफ चली जाती है, right? So in the process of making resin, every time 300,000 insects, right, they lose their lives. But a good thing is that insects, these insects, they survive on host. तो ये insects को grow करने के लिए host चाहिए, मतलब tree चाहिए, और ये जो भी ट्री है इसको हम वेस्ट लैंड एरिया में ग्रो कर सकते हैं. सो दीज ट्रीज कैन बी ग्रोन इन वेस्ट लैंड एरियाज. तो जो भी एरिया वेस्ट पड़ा है वहाँ पे इन ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं. एंड देयरफॉर इन दैट वे दिस इज अ काइंड ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट. जो जगह वेस्ट पड़ी है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा, वहाँ पे अगर ट्रीज लैक को प्रोड्यूस करने के लिए ग्रो किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग अप टू द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, right? And in that way it is a ecosystem development, in that way it is a biodiversity conservation, right? So this is a good thing that the insects, as they require their host, we are growing more trees for them, that too in a wasteland area, which is a kind of ecosystem development, right? Now coming to the very important part, the insect life cycle. So these are actually minute crawling and scale insect. बहुत छोटे insects होते हैं और crawl करते हैं, right? They crawl from one branch to another, and it has suctorial proboscis. Now what is proboscis? Proboscis is like a long tubular part present in any insect for sucking the nutrients, right? कोई भी पार्ट जो लॉन्ग होता है उसको एक्चुअली प्रोबोसिस बोलते हैं, बट जब वो पार्ट इंसेक्ट में प्रेजेंट है और सकिंग का काम करता है, मतलब एज आई टोल्ड दैट दीज इंसेक्ट्स दे सक द सैप ऑफ द ट्री, राइट? तो ट्री का सैप लेने के लिए इनके पास प्रोबोसिस होता है, जो एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है दैट दे इंसर्ट इनटू द प्लांट टिश्यू, जो ये प्लांट टिश्यू में इंसर्ट करते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए. Now since we are going to see the life cycle of the insect, this is important कि हम जो insect का फीमेल, इस insect का जो भी फीमेल और मेल insect है उसके बारे में थोड़ा information ले ले, right? So first of all let us know about the female insect. Now female insect is 4 to 5 mm in length, right? And it has a pyriform body, like a pear-shaped body. The head, thorax, abdomen is not distinct. The point to know here is that this is a female insect, right, of Laccifer and the head, thorax and abdomen, these three parts are not distinct. आप देख के पता नहीं लगा सकते
कि हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन क्लियरली कौन सा है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ राउंड बॉडी, सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री. Then antenna legs are degenerated. अब these female insects, they do not have antenna. They have, maybe they have legs, but these are degenerated. That is, there is no use of legs actually for female insect, right? इनको actually move करने का कोई काम ही नहीं होता है, right? So they do not use their legs, and therefore their legs are degenerated. Same is the case of antenna. They do not have to use antenna, and so their antenna is degenerated. That is, it is present but it is almost negligible. Wings are absent. Now these female insect, they do not have wings also, because they all through their life cycle they do not fly, because their main work is to be at one place and lay eggs. So these are insects. The female insect, it never moves, and therefore antenna legs are degenerated. Head, thorax, abdomen is also not distinct, and wings is also absent. But as you can see here, there is a suctorial proboscis present. With the help of this proboscis, this insect suck sap from the trees. इस proboscis की मदद से ये जो insect है वो ट्री में से सैप को सक करता है. Secretes the bulk of lac. This insect is responsible for the lac production. अब जो lac की हम बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन का क्रेडिट मेनली जाता है फीमेल इंसेक्ट को, क्योंकि फीमेल इंसेक्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो ट्री पे हर वक्त it is seated there on the tree, and it lays n number of eggs on the tree, and in the process it secretes the resin. तो फीमेल जो है वो ट्री पे ही होता है, एक ही जगह पर the female is sitting, and उस जगह पर बैठ के it lays eggs, and in the meanwhile, in the process of laying eggs, वो इस रेजिन को secrete करता है. तो female insect secretes the bulk of lac. Now coming to the male insect, right? So as you can see that the male insect is totally different from the female insect. Male insect has wings, right? The male insect is red in color. It measures 1.2 to 1.5 mm in length. So it is actually smaller than the female insect. Female insect से male insect की size छोटी होती है. It has reduced eyes and antennas. इनके antennas और eyes reduced होते हैं, but better than the female insects. Female insects की comparison में they have a better eyes and antenna. The mouth is absent. Now this is an important thing. The male do not have mouth because these insects are not going to sit on the tree, and these insects are not going to suck the sap from the trees, right? तो इनका काम सिक्रीशन का नहीं होता. ये जो भी मेल इंसेक्ट है इनके पास प्रोबोसिस नहीं होती है, क्योंकि these are insects that have wings. They will fly and they will fertilize the female. इनका काम होता है females को fertilize करना, and therefore they have wings, so a single male can fertilize many females, and therefore their mouth is absent because mouth का उनको कोई use ही नहीं है, right? So wings may be present or absent, but there may be males that may have wings, that may not have wings, but the purpose of male insect is of fertilization, and the purpose of female insect is like laying eggs. So female is most of the time a machinery which lays eggs sitting at one place, and males are most of the time the roaming member of the family which fertilize the females, right? So the secretion is done by female, but for that
Obviously fertilization is important, so male are responsible for the fertilization. So I hope that this part is clear with you, the male and female insects, right? Now let us understand a little bit about its reproduction types. So lac insects have ovoviviparous type of reproduction. Now what is ovoviviparous, that we will understand in the next slide. For now you can just remember that it has ovoviviparous type of reproduction. So this is a reproduction in which female lay ready to hatch 20 to 500 eggs. तो एक फीमेल 20 to 500 eggs ले करती है, which is ready to hatch, means कि एग जो है उसको बाहर आने के बाद कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही एग्स बाहर आएंगे जैसे ही एग्स जो है हैचिंग के लिए रेडी है, सो एग्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द यंग वंस, राइट. सो हियर द एम्ब्रियो आर ऑलरेडी फुल्ली डेवलप्ड इन एग्स. तो एग्स के अंदर ही एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप्ड है. अदरवाइज दूसरे केसेस में क्या होता है कि बर्ड जैसे एग ले करता है तो उसके कई दिनों बाद एग में से बेबी आता है, ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग को एक वार्मथ चाहिए होता है, एक प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए उसे टाइम चाहिए होता है. बट यहाँ पे क्या होता है कि एम्ब्रियो ऑलरेडी फुल्ली डेवलप्ड होते हैं एग्स में, और जैसे ही फीमेल एग्स ले करती है तो तुरंत एग हैचिंग के लिए रेडी होता है, मतलब एग में से तुरंत बेबीज बन जाते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ओवोविविपेरस टाइप ऑफ reproduction. But in the next slides we will understand what is this term actually. For now you can just remember this, that they lay eggs that are ready to hatch. Now the life cycle of this insect, it takes around 6 months, right? And this consists of 5 to 6 stages. 5 या 6 stages होते हैं. So these stages are eggs, nymph, instar, pupa, adults. So these are the stages that are present in the life cycle of lac insects. Now we need to know that what is nymph. Egg to we all know, but what is nymph? Nymph is the starting stage in the life cycle of this insect. So egg में से जो सबसे पहला soft body बनेगा insect का, that is the nymph. So nymph is like an exact copy of the parent. We will understand this with the help of diagram, but nymph is the stage where the insects start its life as minute soft bodies. So these are minute soft bodies. Then instar. Instar is a phase between two periods of molting in the development of an insect larva or other invertebrate animal. So instar क्या होता है? Instar एक phase है between two periods of molting. दो मोल्टिंग जब होता है उसके बीच का जो पीरियड है उसको इंस्टार बोलते हैं. अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा दैट व्हाट इज मोल्टिंग, राइट? सो फॉर दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट मोल्टिंग इज कास्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी आइदर एट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द ईयर और एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन इट्स लाइफ साइकिल. सो व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी इंसेक्ट जब डेवलप हो रहा होता है तो उस प्रोसेस में वो अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को रिमूव करता है, कुछ समटाइम्स कुछ स्किन के पार्ट को रिमूव करता है या फिर कोई और पार्ट को वो शेड करता है, तो उसको बोलते हैं मोल्टिंग, राइट? सो मोल्टिंग इज इम्पॉर्टेंट टू गो फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए जो डेवलपमेंट होता है
उसको एक्चुअली मोल्टिंग बोलते हैं। मतलब मोल्टिंग में क्या होता है कि वो अपना पहले वाला बॉडी पार्ट को पार्ट ऑफ उसकी जो बॉडी होती है उसको थोड़ा सा कुछ रिमूव करता है, मे बी स्किन शेड करता है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। सो इंस्टार क्या होता है, इंस्टार ऐसा स्टेज है जहाँ पे दो मोल्टिंग के बीच का जो फेज है, राइट, लाइक पहले जो स्किन शेड किया, पहले जो पार्ट शेड किया और अब जो पार्ट शेड करने वाला है, उसके बीच का जो फेज है, उन दो पीरियड्स के बीच का जो फेज है उसको इंस्टार बोलते हैं। सो इंस्टार इज एक्चुअली प्रेजेंट इन लाइक मैनी इंसेक्ट्स। ये स्टेज बहुत सारे इंसेक्ट्स में होता है, इस इंसेक्ट में भी है। एंड वन अनदर टर्म दैट वी नीड टू नो इज मेटामॉर्फोसिस। सो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? आई थिंक जूलॉजी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, and this is a common term actually. Metamorphosis is biological process involving a conspicuous and relatively abrupt change in the animal's body structure. तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि इंसेक्ट की बॉडी में एब्रप्ट चेंज आता है, मतलब एग जैसा था वैसा निम्फ नहीं है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। एग में से एक एडल्ट बन जाता है और एग में से एडल्ट टोटली डिफरेंट है। निम्फ में से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है और निम्फ और एडल्ट दोनों का स्ट्रक्चर टोटली अलग है। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें से निम्फ में से एडल्ट बन गया, राइट, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। सो एक टोटल चेंज कम्स फ्रॉम व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ निम्फ टू व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट। तो दोनों का स्ट्रक्चर टोटली अलग होगा, बट ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक के बाद एक प्रोसीड करता है और इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब मेटामॉर्फोसिस जो है वो दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। ये भी समझाऊंगी, बट फॉर नाउ आई थिंक दैट दीज टर्म्स आर क्लियर विथ यू, राइट। नाउ ओके, लेट अस अंडरस्टैंड that nymph is a stage that is present in some insects, in insects that undergo incomplete metamorphosis। तो जिन insects में incomplete metamorphosis होता है उसमें उन insects की लाइफ साइकिल में nymph वाला स्टेज प्रेजेंट होता है, और जिन insects में complete metamorphosis होता है उन इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में निम्फ की जगह लार्वे वाला स्टेज प्रेजेंट होता है, राइट। सो इन शॉर्ट, निम्फ आर बेबीज दैट लुक लाइक एडल्ट्स। तो एडल्ट इंसेक्ट जैसा लगता है, जैसा दिखता है, एग्जैक्टली वैसा ही उसका बेबी भी दिखेगा। सो इट इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द एडल्ट पेरेंट। पेरेंट जो है उसका एग्जैक्टली स्मॉलर वर्जन है निम्फ। तो निम्फ जो है वो बेबी है, बट बेबी इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द एडल्ट पेरेंट इटसेल्फ, राइट। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निम्फ। तो एक एडल्ट इंसेक्ट जैसा दिखता है, मतलब एडल्ट लैक इंसेक्ट जैसा दिखेगा, उसके बेबीज भी उसके जैसे ही दिखेंगे, बट बहुत छोटे और सॉफ्ट बॉडीज होंगे, विच इज कॉल्ड निम्फ। अब लार्वा क्या है? दीज लुक वर्म लाइक एंड हैव नो रिजेम्बलेंस टू एडल्ट्स। सो लार्वास आर ऑल्सो बेबीज, राइट, पर ये वर्म लाइक होते हैं, राइट, और इनका रिजेम्बलेंस इनके एडल्ट से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वी नो हाउ अ बटरफ्लाई इज फॉर्म्ड। बटरफ्लाई पहले वर्म जैसा होता है, राइट, कैटरपिलर जैसा होता है, और जब एडल्ट हो जाता है तो इट हैज़ ब्यूटीफुल विंग्स, इट हैज़ नथिंग टू लुक लाइक वर्म, सो देयर इज नो रिजेम्बलेंस टू द एडल्ट्स। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, वेयर एक स्टेज में से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं। बट यहाँ पे क्या है, here incomplete metamorphosis take place, not every part of the body is developed, but the nymphs are like a smaller version of their parents itself,
अगर आपने देखा हो तो कुछ इंसेक्ट्स में लार्वे टर्म यूज़ होता है, कुछ इंसेक्ट्स में निम्फ टर्म यूज़ होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि निम्फ बेबीज़ हैं जो अपने एडल्ट पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं, बट these are smaller versions. Larvae are worm like and they have no resemblance to their adults, right? Now this nymph, they grow by molting, which is called instar. As I said, the phase between two molting is called instar. Okay, now let us understand the difference between three types of reproduction, that is oviparous. Oviparous is these are organisms that lay developing eggs that complete their development and hatch externally from the mother. तो oviparous in short क्या होते हैं? ऐसे organism जो egg को lay करते हैं. For example a hen, right? hen eggs lay करती है और बाकी सारा डेवलपमेंट जो है वो मदर की बॉडी के बाहर होता है. सो अ hen will sit over the egg and in the process chickens will be formed. So this is oviparous type of reproduction where the development takes place externally from the mother's body. So mainly these are egg laying organisms. Now viviparous are those organisms that produce they produce their young ones by means of eggs which are hatched within the body of the parent. तो viviparous organisms क्या होते हैं? जो eggs produce करते हैं और उनका जो egg है वो body के अंदर ही hatch होता है और फिर जो baby है that comes out of the body. So these are organisms that give directly birth to the young ones. So for example a dog. So dog directly gives birth to a puppy. Similarly, similar is the case with humans. In humans also this is viviparous type of reproduction where baby is formed directly. So now coming to the term which is term for the lac insects. This is ovoviviparous type of reproduction where the egg development is inside the mother but nutrients are obtained from yolk sac. अब ovoviviparous में क्या होता है? These are egg laying, मतलब egg तो lay करते हैं but eggs are not laid externally. ठीक है, egg का जो भी development है वो mother की body के अंदर ही होता है. सारे एग्स मदर की बॉडी के अंदर होते हैं बट उसका जो भी डेवलपमेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए वो सब कुछ एग्स में से ही, एग के योक सैक में से ही ऑब्टेन करता है. इन केस ऑफ विविपैरस क्या था कि एग जो है वो मदर की बॉडी से अटैच्ड होता है और मदर की बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है एंड लेटर ऑन इट गिव्स बर्थ टू अ यंग वन. पर ओविविपैरस में क्या होगा? एग्स होंगे, एग्स सारे एग्स मदर की बॉडी के अंदर होंगे, राइट, एंड द डेवलपमेंट विल ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट nutrients is not obtained from the mother, the nutrients is obtained from the yolk sac itself. मतलब एग में जो yolk sac होता है उसी में से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होंगे बट सारा जो एग का डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होगा. बट द एग इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मदर्स बॉडी, द डेवलपमेंट, द न्यूट्रिएंट्स दे गेट फ्रॉम द yolk sac of the egg itself. So this is a kind of mixture of oviparous and viviparous and therefore this is called ovoviviparous type of reproduction, right? So egg का सारा development body के अंदर होगा and then later on nymphs will be formed directly. So I hope that this term is clear with you. Now coming to the life cycle of lac insects. So as I said, lac insects जो है वो they require a host.
right? So this is for example a host tree. Let us consider that this is a host branch, किसी भी ट्री का ब्रांच है, ठीक है. उसके ऊपर ये सब जो आपको बिग बॉडीज दिख रही है, दीज आर द पायरिफॉर्म बॉडीज ऑफ द फीमेल इंसेक्ट. दिस इज द फीमेल इंसेक्ट. और ये सारे जो है ये निम्फ है जो फीमेल इंसेक्ट ने एग में से प्रोड्यूस किया है, right? And this is the female insect. This is the female insect. Now this female insect is a egg laying female insect. So how can we know that the egg laying is has started? Sorry, how can we know that the egg laying has reached to an end? मतलब फीमेल ने सारे एग्स दे दिए हैं, वो कैसे पता चलता है? बाय द प्रेजेंस ऑफ द येलो स्पॉट. सो इफ यू कैन सी अ येलो स्पॉट, इट मीन्स दैट द एग लेइंग हैज एंडेड. मतलब फीमेल हैज ऑलरेडी गिवन 400 to 500 एग्स इन द बॉडी. इट इज़ देयर इन इट्स बॉडी, उसकी बॉडी में है सारे एग्स, बट अभी बाहर नहीं आए हैं, राइट? तो जैसे ही एग्स हैचिंग के लिए रेडी होंगे तो उसमें से निम्फ बन जाएगा. सो द येलो स्पॉट शोज द एंड ऑफ एग लेइंग. मतलब सारे एग फीमेल्स ने दे दिए हैं. अब द नेक्स्ट स्टेज इज हैचिंग. हाउ डू वी नो दैट द एग इज अबाउट टू हैच? मतलब हाउ डू वी नो दैट के एग में से अब निम्फ बनने वाले हैं? दैट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ द ऑरेंज स्पॉट. सो इफ ऑरेंज स्पॉट्स इज सीन, सो इट मीन्स दैट it is the starting of the period of hatching where egg में से nymph बनना start हो जाएंगे. So these are the nymph, right? These are the crawlers. तो egg जो hatch हुआ उसमें से directly nymph बनता है. इनको crawlers भी बोलते हैं क्योंकि ये अब crawl करके tree के branches पे चढ़ जाएंगे. So that is called swarming. The process of swarming. Swarming का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे nymph बहुत सारे insects एक place में से दूसरे place में जाते हैं, तो that is called swarming. So this is the process of swarming where the nymph will move on other branches, and then on the branches these will settle and instar formation will take place. Instar, as I told, is the phase between two periods of molting. Molting के बीच का जो period है उसको instar बोलते हैं. And then from the instar pupas will be formed. So if it is a female pupa, it will look like this. If it's a male pupa, this will look like a small oval shaped structure. Now from the oval shaped structure, male insect will come out from an operculum. तो operculum में से मतलब यहाँ पे एक opening है जिसमें से male insect बाहर आएगा, and female insect is formed within some time. An adult female insect is formed, which is a form of incomplete metamorphosis, because incomplete metamorphosis इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें सारे बॉडी पार्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं. हमें नहीं पता चलता कि हेड कौन सा है, थॉरिक्स कौन सा है, एब्डोमेन कौन सा है, राइट? सो इट लुक्स लाइक more or less spherical structure. So this is incomplete metamorphosis. Whereas the adult male goes through complete metamorphosis, so it has wings, antennas, head, thorax, abdomen and everything, and therefore adult female form is a completely metamorphosed insect, and then they will start their work. The female once formed will settle forever on the branch. फीमेल जो है वो हमेशा ब्रांच पे एक ही जगह पर रहेगा और एग ले करने का काम करेगा, और मेल जो है वो फीमेल को फर्टिलाइजेशन करने का काम करेगा, एंड फीमेल्स विल ले एग,
and in the process of laying egg these will secrete resin, राइट। तो इस प्रोसेस में वो रेजिन को सिक्रीट करेंगे और वही रेजिन है जो हम लैक की तरह यूज़ करते हैं। नाउ वन थिंग टू नो इज़ दैट जब एग लेइंग होता है तो फीमेल की बॉडी जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है साइज़ में, क्योंकि फीमेल की बॉडी जो है उसमें बहुत सारे एग्स वो कैरी करती है। और जब एग लेइंग हो जाता है तो फीमेल जो है वो श्रिंक हो जाती है एंड इट मेक्स स्पेस, अल्टीमेटली द फीमेल डाइज एंड इट मेक्स स्पेस फॉर द nymph to stay there and for their protection the lac cells are used. So जब एग लेइंग होता है तब फीमेल अपनी बॉडी के ऊपर रेजिन सिक्रीट करती है एंड जब सारे एग लेइंग हो जाते हैं, राइट, जब सारे एग्स निम्फ बन जाते हैं तो वही रेजिन का जो स्ट्रक्चर है उसको निम्फ के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है और फीमेल इंसेक्ट जो है वो श्रिंक होके अल्टीमेटली इट डाइज, राइट। सो दिस इज द रेजिन दैट इज सिक्रेटेड ओवर द फीमेल बॉडी, राइट। सो आई होप दैट दिस लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट्स इज clear with you. So one important thing to know is that the insect completes its life cycle twice a year but the season of maturity differs. तो साल में 2 बार लाइफ साइकिल कैरी आउट कर सकते हैं। तो मतलब एक साल में फॉर लाइक जैसे हमने पहले ही देखा था कि 6 मंथ्स का इनका लाइफ साइकिल होता है। सो इन दैट वे दे कैन कैरी आउट 2 लाइफ साइकिल्स इन अ ईयर, बट मैच्योरिटी सीजन हर इंसेक्ट के लिए वेरी करता है। नाउ सिंस वी नो द लाइफ साइकिल, now we will understand that how lac culturing is done. For that, first is lac cultivation and second thing that we need to understand is lac processing. So first we need to know that how lac cultivation is done. So lac cultivation is basically simple and it actually requires part-time attention. थोड़ा सा अटेंशन दे दिया तो लैक कल्टिवेशन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स तो बाद में आई, बट पहले लोकल प्रैक्टिसेस होते थे, मतलब लोकल पीपल खुद से ही लैक कल्टिवेशन करते थे। सो दैट इज़ कॉल्ड लोकल प्रैक्टिस। सो लोकल प्रैक्टिसेस में क्या होता था दैट द कल्टिवर्स वर सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वॉज ऑब्टेन्ड। तो लोकल प्रैक्टिसेस जो था वो पार्ट टाइम रहता था, राइट। तो कल्टीवर यानी कि जो इंसान जो भी पर्टिकुलर ओनर लैक कल्टीवेशन को कैरी आउट कर रहा है उसको कल्टीवर कहा है यहाँ पे। सो कल्टीवर को जो भी प्रोडक्ट मिलता था वो उससे सेटिस्फाइड रहता था, बिकॉज उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, क्योंकि लोकल प्रैक्टिसेस थे, पार्ट टाइम अटेंशन देते थे। तो क्या होता था कि जो भी जितना भी लैक मिलता था, जितना भी जो भी प्रोडक्ट मिलता था, दे वर हैप्पी विथ वॉट एवर वॉज ऑब्टेन्ड, सो देयरफॉर दे वर सेटिस्फाइड। बट लोकल प्रैक्टिसेस में what is the problem that the same host plant is continuously exploited. एक का एक होस्ट प्लांट बार बार एक्सप्लॉइट होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी होस्ट प्लांट था, फॉर एग्जांपल पलाश का ट्री है, तो अगर कल्टीवर ने इंसेक्ट्स को पलाश के ट्री पे ग्रो करना स्टार्ट किया है तो वो क्या होता था कि बार बार उस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल उसी प्लांट पे होती थी। तो उस तरीके से क्या होगा कि क्योंकि इंसेक्ट प्लांट का सैप सक करते हैं तो होस्ट प्लांट जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, राइट। तो क्योंकि होस्ट प्लांट एक्सप्लॉइट हो जाता है, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट गुड। And also at that time only natural inoculation occurs. Natural inoculation मतलब
प्लांट का इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ और दूसरा लाइफ साइकिल अपने आप से इंसेक्ट स्टार्ट करता है और उसी प्लांट पे वापस से इंसेक्ट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. तो दैट इज नेचुरल इनोक्यूलेशन. एंड पार्शियल हार्वेस्टिंग वाज डन. पार्शियल हार्वेस्टिंग मतलब कि एक ट्री है, उसमें अगर लैक ग्रो हुआ है, लैक बना है, लैक इंसेक्ट्स है, तो उसके कुछ ब्रांचेस को ही कट किया जाता है जिसमें से लैक लेना है और बाकी ब्रांचेस ऐसे ही रखी जाती है. वो क्यों रखा जाता है? ताकि अगला लाइफ साइकिल स्टार्ट हो सके. सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल हार्वेस्टिंग. And that is what it is written that rest is left for auto inoculation. बाकी ब्रांचेस में भी इंसेक्ट्स है, लैक है, बट उसे लिया नहीं जाता क्योंकि नेक्स्ट इनोक्यूलेशन भी होना है, मतलब कि नेक्स्ट लाइफ साइकिल भी कैरी ऑन होना है. उसके लिए पार्शियल हार्वेस्टिंग ही करते हैं. होस्ट ट्रीज लूज विगर एंड दे आर अनेबल टू कोप द लॉस. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि एक ट्री बार बार यूटिलाइज होता है लैक कल्टीवेशन के लिए, तो उसका न्यूट्रिएंट्स यूज्ड अप हो जाता है, तो उसका विगर, उसका जो ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है वो लूज हो जाता है. एंड इन द प्रोसेस दे आर अनेबल टू कोप अप द लॉस. तो इंसेक्ट की वजह से जो लॉस हुआ वो उसमें से बाहर ही नहीं आ पाता एंड देयरफॉर द ट्री बिकम वीक एंड डाई. राइट. सो इस प्रोसेस में ट्रीज जो है वो वीक हो जाते हैं एंड दे डाई. राइट. नाउ देयरफॉर द कल्टीवर इज फोर्स टू अबैंडन लैक कल्टीवेशन. अब ट्रीज ही नहीं रहे वो, तो फिर लैक कहाँ कल्टीवेट करेंगे? देयरफॉर जो भी कल्टीवर है दे हैव टू अबैंडन द बिजनेस ऑफ लैक कल्टीवेशन. So these are the drawbacks of local practices. So therefore it becomes important to have a scientific method, right? And this scientific method is called coop system or cope system, right? So what is cope system? Cope system is where one single host is not utilized again and again, right? Alternative host रखते हैं ताकि एक ट्री अगर इंसेक्ट एक ट्री पे ग्रो हुआ तो वो मीनवाइल उसके बाद रेस्ट कर सके और उस टाइम पे दूसरे ट्री को यूटिलाइज कर सकते हैं लैक कल्टीवेशन के लिए. सो इन दिस प्रोसेस आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन अगर. आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन मतलब इंसेक्ट को लेकर उस पर्टिकुलर ट्री पे इनोक्यूलेट किया जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर ट्री पे छोड़ा जाता है ताकि आर्टिफिशियली वो ट्री पे इंसेक्ट्स जो है वो ग्रो होने लगे. एंड रेस्टिंग पीरियड इज गिवन टू द होस्ट. सो एक सिंगल होस्ट को यूज़ नहीं करते. पहला ट्री अगर यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइफ साइकिल में तो नेक्स्ट लाइफ साइकिल में उसको रेस्ट देते हैं और इंसेक्ट का नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो है वो दूसरे ट्री पे होगा. तो मीनवाइल जो फर्स्ट ट्री है इट विल स्टार्ट कोपिंग बाय द डैमेज, क्योंकि डैमेज जो होता है वो इतना सीरियस नहीं होता है बिकॉज दीज आर वेरी माइन्यूट इंसेक्ट्स. वो सिर्फ सैप सक करते हैं और इतना डैमेज नहीं होता है जो प्लांट रिकवर कर सकता है. तो एज द प्लांट रिकवर्स दैट प्लांट कैन अगेन बी यूटिलाइज्ड फॉर लैक कल्टीवेशन. Now there are certain steps in lac cultivation. This is selection and maintenance of host plant. तो host plant जो है मतलब लैक के इंसेक्ट सारे ही ट्रीज पे ग्रो नहीं होते, तो we have to make a proper selection of the tree and we have to maintain that host plant. Then inoculation of host plant with healthy lac insects. अब सिर्फ होस्ट प्लांट लेने से तो नहीं हो जाएगा, होस्ट प्लांट के ऊपर उस पर्टिकुलर लैक इंसेक्ट का इनोक्यूलेशन करना पड़ेगा. तो एक बार इनोक्यूलेशन करेंगे
तो वो लैक इंसेक्ट्स ट्री पे सेटल हो जाएंगे और फिर उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा. देन नेक्स्ट इज कलेक्टिंग और हार्वेस्टिंग लैक एंड प्रोसेसिंग लैक. तो एक बार लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई तो वो जो रेजिन बना, राइट, उस रेजिन को कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना और उसका फिर प्रोसेसिंग करना. सो एंड देन ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज. सो एनिमीज से प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है. सो लैक इंसेक्ट्स के भी अपने कुछ एनिमीज हैं जिससे लैक इंसेक्ट्स को बचाना ज़रूरी है, अदरवाइज लैक का जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो सकता है. So what is done usually in artificial inoculation? Brood lac is tied on specific prepared host. अब आपको you must have question that what is brood lac. So brood lac is a stick. पहले वाला जो ट्री है उसमें से एक स्टिक ले लिया जाता है जिसमें ऑलरेडी फीमेल इंसेक्ट्स प्रेजेंट है. क्योंकि फीमेल इंसेक्ट्स एग ले करने का काम करती है, तो ब्रूड लैक मतलब ऐसा स्टिक जिसमें फीमेल इंसेक्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें एग्स है हैचिंग के लिए. ठीक है, तो ब्रूड लैक इज टाइड ऑन स्पेसिफिक प्रिपेयर्ड होस्ट. हमने जो भी होस्ट डिसाइड किया है, जो भी ट्री डिसाइड किया है, उसमें ब्रूड लैक का जो स्टिक है उसको साथ में बांध दिया जाता है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये ब्रूड लैक है, मतलब कि ये पहले वाले ट्री का ब्रांच है जिसमें ऑलरेडी फीमेल्स प्रेजेंट है, जो एग लेइंग फीमेल्स हैं. उसको मैं कोई भी दूसरे होस्ट के साथ, कोई भी ट्री के साथ टाई अप कर दूंगी, ताकि क्या होगा कि ये जो भी इंसेक्ट्स है दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन दिस ट्री एंड इन दैट वे दे कैन स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल. सो दिस इज कॉल्ड द ब्रूड लैक. सो फीमेल इंसेक्ट्स हैचिंग के लिए जो रेडी है उसमें से निम्फ निकलेंगे. सो आफ्टर एमर्जेंस द निम्फ विल सेटल ऑन फ्रेश होस्ट प्लांट. तो निम्फ जो है फ्रेश होस्ट प्लांट पे जाके यहाँ पे सेटल हो जाएंगे निम्फ सारे, एंड दिस विल सक द प्लांट सेप एंड ग्रो एनक्रस्टेशंस. अब ये यहाँ पे प्लांट सेप सक करते रहेंगे और एनक्रस्टेशंस ग्रो करेंगे. एनक्रस्टेशंस मतलब कि जो भी रेजिन का आउटर कवरिंग बनता है, दैट इज कॉल्ड एनक्रस्टेशंस, राइट. सो दीज आर द रेजिन एनक्रस्टेशंस एंड लेटर ऑन ये जो एनक्रस्टेशंस बने, दिस इज स्क्रैप फ्रॉम द ट्री. ट्री में से निकालने के बाद इसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि ये प्योर मतलब ये मिक्स्ड फॉर्म में होता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इसको आगे इंडस्ट्री में प्रोसेस करना पड़ता है जिसमें से प्योर लैक मिलता है, राइट. सो एज आई टोल्ड, दीज आर एक्चुअली लैक सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फीमेल इंसेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द nymphs. Now so for us, what is lac culture? Lac culture is the scientific management of lac insects to obtain a high amount of quality lac. So ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिससे लैक इंसेक्ट्स में से ज़्यादा और हाई क्वालिटी का लैक ऑब्टेन कर सके. सो 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस. तो इस लैक कल्चर का जो प्रोसेस है इसमें 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल होस्ट. इट इज़ सिलेक्शन ऑफ सूटेबल होस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रूड लैक and selection of proper site for cultivation. तो as I told, किसी भी इंसेक्ट को, लैक इंसेक्ट को ग्रो करना है, so we require suitable host plant, right? So what are the characteristic of a suitable host plant? The sap should have a neutral or slightly acidic pH वैल्यूज़ बिटवीन 5.8 to 6.0. तो जो होस्ट प्लांट का सैप है उसका जो pH है वो न्यूट्रल या तो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स है वो इस pH के सैप पे सर्वाइव करते हैं. देन सैप डेंसिटी शुड बी लोअर.
मतलब सैप की डेंसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी कम होगा तो वो इजीली सैप को सक कर पाएगा। एंड ऑल्सो द प्लांट शुड बी क्विक ग्रोइंग, मतलब जितना जल्दी प्लांट ग्रो होगा तो उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स उस पर सर्वाइव कर पाएंगे। सो देयरफॉर इट शुड बी क्विक ग्रोइंग and it should be well adapted to pollarding. Now pollarding is a term which literally means cutting the trees, cutting the branches. pollarding मतलब क्या होता है कि शेप में रखने के लिए, या फिर इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रूनिंग, ट्री को शेप में रखने के लिए कट करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड pollarding. So this particular host should be well adapted to pollarding, right? Now coming to the second important thing, which is availability of brood lac. So as I have already explained what is brood lac, it is a lac stick having mature female insects ready to give rise to the next generation and are called brood lac, right? तो ये ऐसा lac stick है पहले वाले प्लांट में से जिसमें ऑलरेडी मैच्योर इंसेक्ट्स, फीमेल इंसेक्ट प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देने के लिए रेडी है. सो दिस इज एक्चुअली अ ट्विग फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप. पहले वाली क्रॉप में से एक हेल्दी ट्विग ले लो तो उसको ब्रूड लैक बोलते हैं. दिस शुड बी कट एट द प्रॉपर टाइम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रूड लैक को प्रॉपर टाइम पे कट करें ट्री में से. क्यों? क्योंकि अगर देर हो गई तो जो भी निम्फ है वो ऑलरेडी फीमेल में से बाहर आ जाएंगे, राइट? और हमें वो अभी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रूड लैक तो हम आर्टिफिशियली इनोक्यूलेट करेंगे दूसरे ट्री में, राइट? सो प्रॉपर टाइम शुड बी नोन. सो फॉर दैट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लार्वल एमर्जेंस इज इम्पॉर्टेंट. सो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट होता है निम्फ के बाहर आने का, वो जानना ज़रूरी है. एंड द ब्रूड लैक शुड बी पेस्ट फ्री हेल्दी ब्रूड विच इज़ टू बी टेकन. तो ब्रूड लैक भी हेल्दी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रूड लैक में लैक इंसेक्ट्स तो है बट उसके साथ साथ लैक इंसेक्ट्स के एनिमीज़ भी है. तो अगर ऐसा होगा तो जो भी ब्रूड लैक हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि लैक इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से बिकॉज ऑफ द पेस्ट ऑफ लैक, राइट? So this is about brood lac and it should be utilized as soon as possible. तो ब्रूड लैक जो है वो जितनी जल्दी हो सके एक बार कट करने के बाद तुरंत यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ा रहेगा तो बहुत चांसेस है कि उसमें पेस्ट हो जाएंगे या फिर कोई भी और डैमेज हो जाएगा. इसलिए बेटर है कि ब्रूड लैक जैसे ही ट्री में से कट किया उसको दूसरे ट्री में यूज़ कर लिया जाए. And third is selection of proper site for cultivation. So site भी बहुत important है, मतलब host plant जो है वो हम किस जगह पे रखेंगे. तो that is open areas. Lac insects जो है वो open areas में ही grow करते हैं and they require free circulation of air. तो air का circulation host के आसपास बहुत अच्छे से होना चाहिए. Fire susceptible places is to be avoided. क्योंकि अगर ऐसी जगह चूज़ करेंगे जहाँ पे फायर इजीली लग जाता है, सो व्हाट विल हैपन दैट द ट्री विल गेट स्पॉइल्ड एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल द लैक इंसेक्ट्स विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड. प्रूनिंग इज इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली दिस पॉइंट शुड कम हियर इन सूटेबल होस्ट प्लांट, दैट जो प्लांट है उसमें प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रूनिंग मतलब कटिंग. एज आई सेड दैट द प्लांट शुड बी वेल अडेप्टेड टू पोलार्डिंग. तो कटिंग के लिए बहुत अडेप्टेड होना चाहिए. प्रूनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो नए शूट्स आएंगे, और नए शूट्स का आना बहुत ज़रूरी है. नए शूट्स को बोलते हैं सक्यूलेंट शूट्स, ठीक है? क्योंकि नए शूट्स क्या होते हैं? दीज आर फ्रेश शूट्स, right? So fresh shoots are easy for the insects to get sap from. क्योंकि नए शूट होंगे तो सॉफ्ट शूट होगा तो वो इजीली अपने प्रोबोसिस को यूज़ करके सैप को यूज़ कर पाएंगे. पर अगर ओल्ड शूट होगा तो ओल्ड शूट तो हार्ड हो जाता है,
सो वो प्रोबोसिस को यूज़ करके सैप नहीं ले पाएंगे, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रूनिंग टाइम पे हो प्लांट की, बिकॉज नए शूट्स चाहिए, क्योंकि जो भी निम्फ है, जो भी फीमेल इंसेक्ट है, वो नए शूट्स में से इजीली सैप को ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव पीरियोडिक रेस्ट टू द होस्ट प्लांट, और उसके लिए साइंटिफिक मेथड में कोप सिस्टम यूज़ होता है, जहाँ पे ऑल्टरनेट होस्ट को यूज़ किया जाता है, ताकि एक होस्ट यूज़ हो जाने के बाद उसको रेस्टिंग पीरियड मिले, राइट। नाउ दीज आर सम ऑफ द होस्ट प्लांट ऑफ लैक इंसेक्ट्स। दिस इज ब्यूटिया मोनोस्पर्मा विच इज कॉल्ड पलास। इसको होली में भी यूज करते हैं फॉर येलो कलर। देन दिस इज Ziziphus mauritiana is also a very good plant for these insects. Then Sclera oleosa, कुसुम ट्री। कुसुम ट्री भी एक बहुत अच्छा होस्ट है। सिमिलरली अकेशिया कटेचू विच इज़ कॉल्ड खेर ट्री, एंड फाइकस बेंगालेंसिस विच इज़ कॉल्ड पीपल ट्री। ऑल ऑफ these are good host for the lac insects, but in India Butea monosperma, the palas tree, and Sclera oleosa, the kusum tree, both of these are extensively used in lac cultivation. In fact lac cultivation को इन दो प्लांट के ऊपर से नेम भी मिला है, ठीक है, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द होस्ट। देर आर मेनी अदर होस्ट ऑल्सो, बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन वंस। नाउ लैक इंसेक्ट की भी वेराइटीज़ है इंडिया में। देर आर 2 स्ट्रेन्स इन इंडिया, राइट। इंडिया में 2 स्ट्रेन्स है, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि लैक इंसेक्ट जो है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 बार लाइफ साइकिल होती है इनकी, राइट। सो देर आर 2 स्ट्रेन्स इन इंडिया। फर्स्ट इज कॉल्ड रंगिनी and second is called kusumi. These are the strains of the lac insect, ठीक है। रंगिनी का साइंटिफिक नेम है केरिया लाका, जो पलास, बेर, अरहर एक्सेट्रा इन सब होस्ट पे ग्रो करता है। तो मेनली रंगिनी जो स्ट्रेन है दैट ग्रोज ऑन पलास एक्चुअली, बिकॉज पलास is having flowers that are used for coloring, so hence this name is given to the strain which is called rangini. So mainly the plant here uses palas, but other host plants can also be used. Now kusumi is the one that is raised on kusum tree only, right? The Sclera tree is used. Then it is called the strain of kusumi is raised only on kusum tree. Now there are lac crops also. सो एज देर आर 2 स्ट्रेन्स इन इंडिया, इंडिया में 2 स्ट्रेन्स है, रंगिनी और कुसुमी। तो ये दोनों स्ट्रेन 2 क्रॉप्स हर साल प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक साल में 2 लाइफ साइकिल होता है। तो रंगिनी के 2 लाइफ साइकिल्स होंगे, कुसुमी के 2 लाइफ साइकिल्स होंगे, और इस तरीके से टोटल 4 क्रॉप हमको मिल सकते हैं। सो हेंस देयर कुड बी टोटल 4 क्रॉप्स, 2 ऑफ ईच. Rangini will have 2 crops and Kusumi will have 2 crops, and these are named after the Hindu month. अब इनका नेमिंग जो है वो हिंदू मंथ के ऊपर से किया गया है। तो रंगिनी जो है, रंगिनी स्ट्रेन जो है, उसके जो क्रॉप्स है दैट इज कॉल्ड कार्तिकी क्रॉप एंड बैसाखी क्रॉप. दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. दिस इज कार्तिकी क्रॉप and this is बैसाखी crop, right? So as you can see, कार्तिकी is a Hindu month, बैसाखी is a Hindu month. तो ऐसे क्यों नेम किया है? क्योंकि रंगिनी इज इनोक्यूलेटेड इन जून जुलाई. अब इनोक्यूलेटेड का मतलब है कि जो ब्रूड लैक है उसको नए ट्री में इनोक्यूलेट किया जाता है जून जुलाई में, और जो नए निम्फ बनते हैं उनका स्वैमिंग, मतलब कि एक ब्रूड लैक में से नए ट्री में वो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में. देन क्रॉप इज रीप्ड, मतलब क्रॉप हमें मिलता है अक्टूबर नवंबर में, यानी कि रेजिन वाला जो पार्ट हमें चाहिए वो हमें मिलता है अक्टूबर नवंबर में, विच इज़ द कार्तिकी मंथ, एंड हेंस
Fourth, it is called Kartiki crop. This is a rainy season crop. Similarly, Baisakhi is inoculated in October November. Swarming जून जुलाई में होता है. क्रॉप रीप्ड मतलब हमारे लिए क्रॉप रेडी हो जाता है मई जून तक, राइट. सो दिस इज़ अ समर सीजन क्रॉप. मतलब हमें जो ब्रांच कट करना है लैक के लिए वो हमारे लिए रेडी हो जाता है मई जून तक, विच इज़ द टाइम ऑफ बैसाखी, and hence it is called Baisakhi crop. This is a summer season crop of Rangini, right. Then Kusumi strain also has two crops, which is Agani crop and Jethvi crop, right. So Agan is a month in Hindu calendar. So this inoculated in June July, swarming Jan Feb, और हमारे लिए crop ready हो जाता है December Jan तक. So this is a winter season crop, right. So हमें जो लैक चाहिए वो हमें मिलता है दिसंबर जैन में. एंड जेठवी क्रॉप इनोक्यूलेटेड इन जैन फेब, स्वामिंग इन जून जुलाई एंड क्रॉप रीप्ड इन जून जुलाई. So this is a summer season crop of Kusumi. So Jethvi is a summer season crop of Kusumi and Agani is a winter season crop of Kusumi. बट कुसुमी स्ट्रेन सिर्फ कुसुम ट्री पे ग्रो किया जाता है और रंगिनी स्ट्रेन जो है वो पलाश यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बेर और जो भी दूसरी ट्रीज है उस पे ग्रो कर सकते हैं. सो दीज आर द टू स्ट्रेन्स ऑफ लैक इंसेक्ट्स इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन these two strains we have 4 crops: Agani, Jethvi, Kartiki and Baisakhi, right. Yeah, so this is the lac insect varieties. Okay, one important thing that in India 90% of lac production is from Rangini strain. 90% lac production जो है वो रंगीनी स्ट्रेन में से होता है एंड 10% लैक प्रोडक्शन जो है वो कुसुमी स्ट्रेन में से होता है, ठीक है. बट कुसुमी स्ट्रेन का आप देखो परसेंटेज ऑफ लैक प्रोडक्शन कम है, मतलब इंडिया में कुसुमी स्ट्रेन में से 10% लैक प्रोडक्शन होता है, बट कुसुमी स्ट्रेन का जो लैक होता है दैट इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड मोस्ट ऑफ दिस गोज इन एक्सपोर्टिंग. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग. So harvesting are of two types. Harvesting is cutting of lac encrusted twigs. मतलब पूरी लाइफ साइकिल हो गई इंसेक्ट की, उसके बाद जो ट्विग्स पे लैक है वो हमें कलेक्ट करना है. सो हाउ डू वी कलेक्ट? वी हैव टू कलेक्ट बाय कटिंग द लैक एनक्रस्टेड ट्विग्स. तो जो भी ट्विग्स पे लैक डिपॉजिट हुआ है वो ट्विग्स हमें कट करनी है. तो उस हार्वेस्टिंग के दो टाइप्स हैं, इमेच्योर हार्वेस्टिंग एंड मैच्योर हार्वेस्टिंग. सो इमेच्योर हार्वेस्टिंग इज वेयर व्हेन लैक इज कलेक्टेड बिफोर स्वैमिंग. मतलब निम्फ के बॉर्न, मतलब निम्फ बाहर आ गए, मतलब स्वैमिंग होने के पहले, यानी कि निम्फ अभी स्वैमिंग करना स्टार्ट नहीं किया है निम्फ ने, मतलब एक ट्री में से दूसरे ट्री में जाना स्टार्ट नहीं किया है, उसके पहले जो हार्वेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं इमेच्योर हार्वेस्टिंग. सो लैक ऑब्टेन्ड इन दिस वे फ्रॉम इमेच्योर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड अरी लैक. लैक इंसेक्ट्स में बी डैमेज्ड इन दिस प्रोसेस. अब इस प्रोसेस में क्या हो सकता है कि लैक इंसेक्ट्स जो है उनको डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स अभी भी ब्रांच पे ही है. तो ब्रांच पे है मतलब ब्रांच पे है, उसके पहले आप ब्रांच को कट कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स जो है वो डैमेज होंगे. सो बट रंगीनी लैक जो है, मतलब जो पलास पे ग्रो होता है, रंगीनी लैक में अरी लैक का प्रोडक्शन बेटर होता है और इसलिए दिस इज़ रेकमेंडेड फॉर पलाश. मतलब पलास पे जो रंगीनी स्ट्रेन यूज़ करते हैं उसके लिए इमेच्योर हार्वेस्टिंग रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट देता है. Whereas mature harvesting is one where lac is collected after swarming. अगर लैक को स्वैमिंग के बाद कलेक्ट करें तो उसको मैच्योर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. तो उसमें क्या होगा कि जो भी निम्फ है वो सब दूसरे प्लांट में ऑलरेडी चले जाएंगे,
So this is a good process because in this the lac insects will not get damaged. So this is called as mature lac. A visual method is adapted to know nymph emergence. अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि निम्फ एमर्ज होने वाला है कि नहीं, उसके लिए विजुअल मेथड यूज़ करते हैं जो मैंने लाइफ साइकिल में एक्सप्लेन किया था, अपीयरेंस ऑफ येलो स्पॉट. एंड हार्वेस्टिंग इज डन हियर एनी टाइम बिटवीन येलो स्पॉट एमर्जेंस एंड इट स्प्रेड टू 1/2 ऑफ द सेल. येलो स्पॉट जो है वो दिखता है और सेल के लैक सेल के हाफ तक स्प्रेड हो जाता है. उस टाइम के बीच में कभी भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. नाउ आफ्टर हार्वेस्टिंग वी हैव टू प्रोसेस द लैक. और उस लैक को प्रोसेस करने के वक्त हमें अलग अलग टाइप के लैक मिलते हैं, जो है स्टिक लैक. सो पहला जो है दैट इज स्टिक लैक. तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लैक दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री. तो जैसे ही हम ट्री को हार्वेस्ट करते हैं तो हमको ये स्टिक मिलता है, इसके ऊपर लैक प्रेजेंट है, तो इसको हम स्टिक लैक बोलते हैं. सो आफ्टर हार्वेस्ट लैक एनक्रस्टेशंस आर रिमूव्ड बाय स्क्रैपिंग विथ नाइफ. तो इसके ऊपर जो भी लैक है उसको नाइफ से स्क्रैप करके निकालते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड लैक और रॉ लैक. इसको क्रूड लैक या रॉ लैक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, राइट. क्रूड इज़ समथिंग विच इज़ इम्प्योर, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉ लैक. इस रॉ लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रॉ मटेरियल है जिसमें से प्योर लैक बनेगा. दिस कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ एंड दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ लम्प फॉर्मेशन. इसको बहुत लंबे देर तक स्टोर नहीं कर सकते, तो इसका तुरंत प्रोसेसिंग हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर की वजह से लम्प बन जाता है, which is not good. The second is seed lac. So this is seed lac which is a primary processing of the stick lac. Stick lac हमको जो मिला उसका primary processing करते हैं तो हमें seed lac मिलता है. The stick lac after grinding is the seed lac. मतलब stick lac को grind कर देते हैं तो हमें seed lac मिलता है. This is also called chowri. क्रश्ड एंड सीव्ड टू रिमूव सैंड एंड डस्ट. तो स्टिक लैक जो है उसको क्रश करके सीव करते हैं, मतलब छानते हैं ताकि जो भी सैंड और डस्ट है वो निकल जाए. एंड इट इज़ वॉश्ड इन लार्ज वैट्स अगेन एंड अगेन. और बड़े वेसल में बार बार इसको धोते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा डाई है वो सब रिमूव हो जाए. कुछ भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ है वो सब वॉशिंग से रिमूव हो जाएगी. एंड इन दिस प्रोसेस डिकेइंग बग बॉडीज भी होते हैं, राइट. तो दैट यील्ड्स रेड कलर विच इज़ द लैक डाई. तो बॉडीज़ की वजह से इस प्रोसेस में रेड कलर मिलता है जिसको लैक डाई बोलते हैं. सो जो भी स्टिक लैक है उसको क्रश करके सीव करके वॉश करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ सीड लैक. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेमी रिफाइंड प्रोडक्ट. ठीक है, इसको हाफली रिफाइंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं. नाउ थर्ड इज शेलैक. शेलैक इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टिक लैक आफ्टर वॉशिंग एंड मेल्टिंग. तो शेलैक जो है उसमें मशीनरी यूज़ होती है क्योंकि यहाँ पे सीड लैक जो है उसमें से वॉशिंग और वॉश करके उसको मेल्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको शेलैक बोलते हैं. So see, this is shellac. As you can see, this is a flaky substance. बहुत पतला substance है. This is yellow colored flakes and this is stretched into sheets of 0.5 centimeter thick. तो इनको sheets में बना देते हैं with the help of rollers. So this is a mechanized process. So it is 0.5 centimeter thick. Then fourth is button lac. तो इसको button lac बोलते हैं. When molten mass is allowed to solidify. तो सीड लैक को हमने मेल्ट करके शीट में बना दिया तो उसको शेलैक बोलते हैं. पर अगर सीड लैक को मेल्ट करके हमने डिस्क का शेप दे दिया, डिस्क शेप, बटन शेप, तो वी कॉल इट बटन लैक. देन नेक्स्ट इज गार्नेट लैक. सो एज यू कैन सी दिस इज गार्नेट लैक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कीरी लैक.
एंड दिस इज़ प्रिपेयर फ्रॉम इन्फीरियर सीड लैक। मतलब इसमें क्या होता है कि सीड लैक जो है उसको जब सीव करते हैं तो जो चीज़ नीचे जाती है वो तो शेलैक होता है, पर जो चीज़ सीव करते वक्त रह जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ जैसा रह जाता है, वो भी एक टाइप का लैक है जिसको हम बोलते हैं गार्नेट लैक। तो इसलिए बोलते हैं दिस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन्फीरियर सीड लैक। सो दिस इज़ डार्क इन कलर एंड फ्री फ्रॉम वैक्स। इसमें वैक्स नहीं होता और डार्क कलर का होता है। दिस इज़ द रेसिड्यू लेफ्ट इन द प्रोसेस ऑफ शेलैक। सीड में से शेलैक बनाते वक्त जो रेसिड्यू रह जाता है वो है गार्नेट लैक। वैसे ही गार्नेट शेलैक भी बनता है। अगर गार्नेट लैक को मेल्ट करके प्रेस कर दिया जाए in the form of sheets, then we call it garnet shellac. Then there is bleached lac. So this is a refined product obtained by chemical treatment. अब यहाँ पे chemical treatment करते हैं. So the shellac या seed lac जो है उसको हम dissolve करते हैं sodium carbonate solution में, एंड देन द सॉल्यूशन जो है उसको ब्लीच किया जाता है विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड. सो दिस गिव्स अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट. सो दिस इज कॉल्ड bleach lac, which precipitates the resin with sulfuric acid. So in short, bleach lac is a chemical treatment where the solution is bleached to give a clear and transparent product, right? So this is the processing of lac, where the lac twigs are processed to get pure lac. तो stick lac में से seed lac मिलता है क्रश करने के बाद और वॉश करने के बाद, और सीड लैक में से हमको शेलैक मिलता है बाय मैकेनाइज्ड प्रोसेस. इन द सेम वे वी गेट बटन लैक. देन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीड लैक, मेकिंग शेलैक फ्रॉम सीड लैक, वी गेट गार्नेट लैक. एंड when we give chemical treatment to the shellac or seed lac, then we call it as bleached lac. So we can understand this with a very simple diagram, that this is stick lac. इसको ग्राइंड एंड वॉश करो तो हमें सीड लैक मिलता है. सीड लैक को हॉट ट्रीटमेंट दो तो मैकेनाइज्ड प्रोसेस से शेलैक बनता है. इस बीच जो रेसिड्यू निकलता है वो गार्नेट लैक है, राइट. मोल्टन फॉर्म अगर डिस्क शेप ले लेता है तो बटन लैक बनता है, और केमिकल ट्रीटमेंट दो तो ब्लीच्ड लैक बनता है. सो दिस इज लैक प्रोसेसिंग इन वेरी शॉर्ट. नाउ there are some lac insect enemies also that we need to know. There are both vertebrate and invertebrate enemies of lac. So among the vertebrate enemies there are squirrels, rats and monkeys, right. So squirrel जो होती है वो डे टाइम पे we already know कि ट्री पे घूमती है, right. and rats जो होते हैं वो नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं. these are rodents. सो ये दोनों ही स्पीशीज़ क्या करती है, दे गनॉ द एनक्रस्टेशंस एंड ईट द मैच्योर फीमेल. तो एनक्रस्टेशंस जो है उसको उखाड़ के उसमें से जो मैच्योर फीमेल है उसे खा लेते हैं. तो अगर फीमेल ही नहीं रहेगी तो इंसेक्ट्स के जो निम्फ है वो कैसे बनेंगे. एंड मंकीज ऑल्सो हार्म by breaking the branches. We know that monkeys are so notorious, right. So they often break branches of the tree and this harms the produce. Actually these are difficult to control. इनको control करना बहुत difficult है, but scaring away or poisoning is usually adopted in this process. So 50% of brood lac damage is because of these three species. इन तीन वर्टिब्रेट स्पीशीज़ की वजह से ही 50% ब्रूड लैक का डैमेज हो जाता है. अब among invertebrate insects there is 30 to 40% damage because of these insects. Now in this there are parasite insects also and there are predator insects also. So parasites insect that harm the lac insects belong to the order Hymenoptera. They lay their eggs in the lac cell. तो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करते हैं. तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, लैक सेल जो लैक इंसेक्ट बनाता है उसमें अपने एग रखते हैं, एंड उनका जो लार्वा बनता है वो लैक इंसेक्ट
पे फीड करता है। सेल में जो भी इंसेक्ट होगा उस पे उसका लार्वा फीड करेगा, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बट जो दो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ टकार्डिएफेगस टकार्डी and Tetrasticus purpureus. These are the two parasite insects that are the enemies of lac insects. Now there are predators also. They cause serious damage to the plant. उसमें Eublema amabilis which is called white lac moth, Holocerca pulveria which is called black lac moth. These two belong to the order Lepidoptera, and Chrysopa species which is called lac wing fly is of order Diptera. ये क्या करते हैं, दे ले देयर एग्स ऑन ट्विग, ये अपने एग ट्विग के ऊपर ही रखते हैं, मतलब ब्रांच के ऊपर। तो जो भी लार्वा बनता है वो क्या करता है, एंटर्स द एनक्रस्टेशंस, लैक सेल के अंदर घुसता है और फीड इंसेक्ट जो भी है उसके ऊपर फीड करता है। अब पैरासाइट और प्रेडेटर के बीच में फ़र्क क्या है, पैरासाइट को यूजुअली एक ही होस्ट चाहिए होता है, पर प्रीडेटर्स जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स पे प्रे करते हैं, राइट। प्रीडेटर्स एक साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स पे प्रे कर लेते हैं, वेयर एज पैरासाइट्स जो है उनको एक होस्ट ही काफ़ी है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एनिमीज ऑफ लैक इंसेक्ट्स। तो प्रीडेटर्स व्हाट दे डू, अ सिंगल लार्वा कैन डैमेज 40 to 50 सेल्स। एक सिंगल लार्वा जो है 40 to 50 lakh cells को डैमेज कर सकता है, राइट, whereas parasite is not going to do that way. Now coming to the composition of lac. Now that we know how lac is obtained, lac कैसे बनता है, क्या insect involved है, so it is important for us to know that what is the composition of lac. So the main constituent of lac is resin, which is a polyester complex of straight chain hydroxy fatty acids. Hydroxy fatty acids का straight chain है. So these are the compositions. lac resin होता है 68%, wax 6%, dye 1%, 2 to 3% water, 3 to 7% mineral matter, albuminous matter 5 to 10%, and some other matters 25%, but the maximum composition is of resin. The major producers in India for lac is Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Uttar Pradesh, Orissa and Gujarat, from which these states Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Uttar Pradesh, these 6 states are the major producers in India, accounting for 95% of national lac production. तो इंडिया का पूरा 95% प्रोडक्शन तो इन्हीं स्टेट्स में से हो जाता है, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट 75 to 80% इज़ एक्सपोर्टेड। जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है, एंड द 20 to 25% रिमेन्स इन आवर कंट्री विच इज़ यूज्ड इन आवर कंट्री फॉर वेरियस पर्पसेस। सो स्टिक लैक जो है उसका प्रोडक्शन इंडिया में 20 to 22,000 टर्न्स होता है, and we know that stick lac is the raw material for lac industry. main raw material तो stick lac होता है, जिसमें से आगे सारे lacks बनते हैं। now coming to the properties of lac, मतलब lac के characteristics क्या होते हैं, it is soluble in alcohol, मतलब alcohol में mix करो या weak alkalis में mix करो तो घुल जाता है। देन कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग यूनिफॉर्म ड्यूरेबल फिल्म, मतलब कोटिंग का काम करता है, एक फिल्म बनाने का काम कर सकता है। इट पॉजेस हाई स्क्रैच हार्डीनेस। सो व्हाट इज स्क्रैच हार्डनेस इज, किसी भी चीज़ को स्क्रैच करो तो उस पर एक लाइन बन जाती है, एक डैमेज हो जाता है। तो ये जो लैक है वो डैमेज से रेजिस्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस टू वाटर से रेजिस्टेंट है। गुड एडेसिव नेचर, मतलब स्टिकिंग नेचर अच्छा होता है, गम की तरह यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी टू फॉर्म गुड सीलर्स एंड अंडरकोट प्राइमर्स, तो प्राइमर्स और सीलर्स की तरह यूज़ होता है। इट हैज़ कैपेसिटी टू अलाउ क्विक रबिंग विथ सैंड पेपर्स विदाउट स्लिकिंग और गमिंग,
तो सैंड पेपर आपको पता होगा जिससे स्मूदनिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इस पे अगर सैंड पेपर रब करो तो भी कुछ अच्छे से स्मूथ फिनिश मिल सकता है। मतलब कि सैंड पेपर से अगर रब करो तो कुछ स्टिक होने का चांसेस नहीं रहेगा, स्मूथली फिनिश दे सकते हैं सैंड पेपर से। नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ लैक, आई थिंक कुछ कॉमन यूजेस तो आप लोग को पता ही होंगे, बट since it is a resin, it has gummy properties, it has adhesive properties, it is used in paint, electrical, automobile, cosmetic, adhesive, leather and wood finishing and other industries. And how half of the total output was consumed in gramophone industry. gramophone industry में पहले लैक बहुत यूज होता था. So it is usually used as a first coating on wood to fill the pores. वुड जो होता है उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स को फिलअप करने के लिए जो पहली कोटिंग देनी होती है वो लैक से दी जाती है. ग्लेज्ड पेपर्स जो भी है वो भी लैक से बनता है क्योंकि लैक में वैक्सी प्रॉपर्टीज़ होती है. लैक बैंगल्स बहुत फेमस है, राइट, वी ऑल नो, वी गो टू राजस्थान, वी परचेज लैक बैंगल्स, राइट. नाउ वी नीड टू नो दैट दिस इज मेड फ्रॉम लैक इंसेक्ट्स. देन टैबलेट की कोटिंग, टैबलेट पे आपको जो फिनिशिंग कोटिंग दिखता है, वैक्सी कोटिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक, राइट. देन इट इज़ यूज्ड एज अ कोट फॉर मेटल वायर टू प्रिवेंट टार्निशिंग. मेटल जो होता है उसमें कोरोजन की वजह से उसकी चमक चली जाती है, तो उस चमक को बचाने के लिए इससे कोट करो तो इट रिमेन्स द सेम फॉर एवर. Then it is used as coating of insulator, coating of spark plugs, and as I said there is lac dye also. So dye is used in dyeing of wool and silk, soft drink formulations, peel coatings, confectionaries and chocolate coatings, right. So there are many uses of lac. These are some of it. So I hope that lac cultivation topic is clear with you, but in case there is anything that you did not understand, please feel free to ask me. I'll clear the doubts for you, right. This was a long topic, but I hope that I was able to make you understand this better. Yeah, so thank you.